So I want your attention, please, everyone. In the previous class, I just introduced what is sets and nothing more than that. I just explained what is sets. I just explained you about, what definition of set, what is cardinal number, and how to represent sets. There are two methods of representation जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा. एक मेथड था सेट बिल्डर फॉर्म और एक है टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. बट हम लोगों ने सम्स इसके ऊपर कुछ भी किया नहीं था लास्ट क्लास में. So in today's class, we'll do a few questions for that. Your concept is a bit clear about what is set builder form and what is roster or tabular form. Okay. Now what is sets? भी हम लोगों ने सिर्फ एक definition के तौर पे देखा था. वैसे कोई sums नहीं किया था last time. So everyone take out NCERT exercise 1.1 and we will do few questions. Okay. That is, we will start from sum number 2. We will not start which of the following are sets, true or false. These things are very simple. We will just keep these things and we'll start from number 2. See, in question number 2, the concept is based on belongs to symbol and does not belongs to symbol. Now, what is the meaning of this? Everyone will know. I want your attention here. Suppose you have a set in which the elements are, suppose 2, 4, 6 and 10. These are called elements of set A. Set A का ये सारा elements है. तो how to relate, repeat, how to relate an element of a set. Element को हम set से कैसे relate करते हैं, कैसे हम लोग relate करते हैं, let us see symbolically. So this is the symbol called belongs to symbol. ये symbol का नाम क्या है? This is called belongs to symbol. Now, when is belongs to symbol and how, in which case is belongs to symbol used? Listen here. If you have to relate any element with a set, अगर किसी भी element को set से अगर मुझे relate करना हो, तो हम लोग belongs to symbol use करेंगे. अगर वो element उस set में present है तो, और अगर वो element उस set में present नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? Does not belongs to. And what is the symbolic notation for does not belongs to? Belongs to को अगर हम लोग स्लैश से काट दें तो क्या होता है? Does not belongs to. जैसे मान लो for example, we are finding that 2 is an element which clearly belongs to set A. 2 is an element which belongs to set A. True or false? 2 belongs to set A. Yes. Now if I say 12 belongs to set A, no. तो हम लोग कौन सा सिंबल देंगे? 12 does not belongs to set A. So belongs to सिंबल हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग को किसी भी एलिमेंट को सेट से रिलेट करना हो. कोई भी एलिमेंट अगर सेट के अंदर प्रेजेंट है तो हम लोग बिलोंग्स टू सिंबल से डिनोट करेंगे, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे, जो कि ये है. ओके, जो मैंने यहां लिखा था. ओके, नेक्स्ट. अगर मैंने ये लास्ट डे मैंने ये भी डिस्कस किया था कि सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है. कार्डिनल नंबर मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक n of in the bracket a means what? The number of elements present in set A. So can you tell me what is the total number of elements present in set A? We are finding that the total number of distinct elements present in set A is equal to how much? It is equal to 4. If you count the total number of elements, you get the total number of elements equals to 4. All right. So these are very basic things, and also in exercise 1.1 the things are very simple. But then also we will discuss. So let us start from question number 3, not 2, because 2 is very simple. You can check there. 5 और उसके बाद बीच में स्पेस दिया हुआ और एक सेट का नाम दिया हुआ है A. So 5 तुम जस्ट चेक कर लो कि क्या वो 5 उस सेट में बिलोंग करता है या नहीं. बिलोंग करता है तो बिलोंग्स टू सिंबल दे दो, बिलोंग नहीं करता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 3. देखो नंबर 3 में एक बार सबको फॉलो करना. नंबर 3, नाउ जस्ट नोट डाउन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. ROST या रोस्टर मतलब चार्ट, मतलब हमको एलिमेंट्स के को लिस्ट करना है इस फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? इफ यू आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रीवियस क्लास, आई शेयर्ड वन वीडियो दैट वाज वेरी सिंपल, दैट्स व्हाई आई शेयर्ड टुडे. वेरी शॉर्ट वीडियो. तो वहां पे मैंने ये सब चीज बताया कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है. रोस्टर फॉर्म को हम लोग टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. तो एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में हम लोग को ये जो नोटेशन दिया हुआ है 3 के सारे क्वेश्चंस में, so I am here in this part. So number 3 में हम लोग को write the following in
रोस्टर फॉर्म। तो कोई बता सकता है कि ये सारे क्वेश्चंस जो सेट में जिस नोटेशन है, इस नोटेशन का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तरीका नंबर 1, तो देखो ध्यान से, एक सेट ए है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट जो है वो क्या है? वो एक इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, ठीक है, x इज एन इंटीजर। नाउ क्या इंटीजर्स, हम लोगों को पता है इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? यस, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? जीरो से राइट साइड में सारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। आई मस्ट से दिस वे, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन द लेफ्ट एंड ऑल नेचुरल नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो आर कॉल्ड व्हाट? इंटीजर्स। मतलब 0 1 2 3 4 up to infinity, 0 minus 1 minus 2 minus 3 and so on up to minus infinity. These are called what? Integers. So can you tell me, अगर x एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? इंटीजर है, एंड कौन से इंटीजर्स? ऑल इंटीजर्स मोर देन -3 बट लेस देन 7, तो फिर x एक सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएगा बताओ तो एक बार? ऑल इंटीजर्स मोर देन -3 बट लेस देन 7, तो -3 से बड़ा इंटीजर और 7 से छोटा इंटीजर्स क्या क्या होता है बताओ? सो सबसे पहला चीज हम लोग 0 लिख देते हैं, ठीक है, बीच में। अब 0 के राइट में कौन कौन से इंटीजर है जो कि 7 से लेस है? इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। बिकॉज़ इट इज x लेस देन 7 आई कैन नॉट कंसीडर 7 को हम कंसीडर नहीं कर सकते। और फिर 0 से छोटा इंटीजर जो कि -3 से बड़ा हो, इट इज -1 एंड -2। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? इट इज -1 एंड -2। ऑलराइट एवरीवन, सो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम लोग को यही करना है। अब एक बार देखना, ये सम नंबर 3 का 5 जस्ट हम लोग ओरली डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि मतलब कंसेप्ट आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये सीबीएसई स्टूडेंट्स जो है ना, ये सेट्स कभी किए नहीं है ये क्लास, मतलब 10 तक। सो एवरीवन नोट डाउन नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 दिख रहा है? अब देखो एक बार, अब ध्यान देना, तो अपने अपने पीडीएफ में रेफर करना है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, तो ये एक सेट है जो क्या है बताओ तो? उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है? उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे लेटर्स है वर्ड ट्रिगोनोमेट्री का। तो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री का सारे लेटर्स है, तो हमको पता है कि सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं हम लोग? सेट्स कहते हैं लोग। तो एक बात बताओ, वर्ड ट्रिगोनोमेट्री में कितने सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है बताओ? हम लोग देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है T, दूसरा है R, I, G, O, N, O ऑलरेडी मैंने रिपीट कर दिया बिकॉज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मैंने बोला, ठीक है, इसको सेट बोलते हैं। M, E ऑलरेडी रिपीट कर दिया, T ऑलरेडी है, R ऑलरेडी है, Y नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। और ऑलराइट एवरीवन, तो यही है, मतलब हम लोग को सम नंबर 3 के अंदर यही करना है। ओके, आई होप तुम लोग को कांसेप्ट मिल गया कि क्या करना है इसमें। यस, इज देयर एनीवन? सर 3 का 1 में -3 भी होना चाहिए ना? नहीं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन को ध्यान से नोट करो तो -3 तो इंक्लूड नहीं है ना। देखो क्वेश्चन में क्या है, x ग्रेटर देन -3, मतलब अपने लोगों को -3 से बड़ा लेना है, -3 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता, अगर यहाँ पे भी इक्वल टू होता, ठीक है, तब अपने लोग -3 और 7 को भी इंक्लूड करते, बिकॉज x, समझ में है तो बात। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वल टू मेंशन नहीं है, जो मैं देख रहा हूँ मेरे मतलब बुक में जो है इक्वल टू कहीं नहीं है। तो कोई बात नहीं, बट मैं बुक में जो देख रहा हूँ इक्वल टू नहीं है यहाँ, ठीक है। क्या पीडीएफ में इक्वल टू दिया हुआ है क्या? सर हम लोग का बुक में इक्वल टू है। कोई बात नहीं, अगर मान लो, हाँ चलो, कंसेप्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे बुक में इक्वल टू है तो फिर यहाँ पे हम लोग -3 भी इंक्लूड करेंगे, बट यहाँ पे जो मैं देख रहा था यहाँ पे मैं देखता एक बार, वहाँ इक्वल टू नहीं है, x ग्रेटर देन सिर्फ, इसी के हिसाब से मैंने ये लिखा, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन में बोर्ड पे ये लिखा था, तो उसके हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, नाउ लिसन हियर नेक्स्ट। अब मैं एक बार नंबर 4 का एक सम बताया, तो फिर तुम लोग एक बार 2-3 सम्स करना, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स आज, ठीक है।
forgot to write E. Okay, please mention E. Trigonometry में E भी है, मैंने वो बोल दिया, skip कर दिया. Attention everyone. Question number 4 now. देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 का 1 एक बार ये हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, काफी बढ़िया सम है. इन लोग एक जो मुझे मिस्टेक जो दिख रहा है वो बुक में बता सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में क्या मिस्टेक दिख रहा है? जस्ट अ मिनट. ये 4 का 1 में ये बुक में क्या मिस्टेक दिख रहा है 1 में? कोई बता सकता है? लास्ट डे का अगर तुम लोगों ने क्लास फॉलो किया होगा तो यहाँ एक मिस्टेक दिख रहा है. क्या बताओ? ब्रैकेट. तो ब्रैकेट. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, हो सकता है तुम्हारे बुक में ना हो बट यहाँ पे दिख रहा है मुझे. तो यहाँ पे सबसे पहला चीज मुझे एक ब्रैकेट देना चाहिए. ये जो है ना, ये ब्रैकेट को सेट से हम लोग डिनोट करते हैं. सेट्स के अंदर जब एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं तो ये ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं. अब देखो मुझे इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? कन्वर्ट करना है मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ. तो कोई ट्राई कर सकते हैं? एक बार बताओ तो. लेट्स सी हु कैन सॉल्व दिस. एनीवन? यस, एनीवन हु कैन ट्राई? Sir, x such that x belongs to a natural number and it is a multiple of 3. And it is a multiple of 3. मतलब okay, let me write. X such that x belongs to natural number and x is a multiple of 3. But actually इससे क्लियर नहीं हो रहा. मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो इंफिनिटी तक जाएगा. तो फिर हम क्या लिखेंगे? Less than 13. मल्टीपल ऑफ 3 and less than 13 is okay, but अगर मैं ऐसे लिखूं तो और ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा. तो एक बार देखो ध्यान से. ये ना लिख करके अगर हम लोग इस तरह लिखें तो बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा. देखो कैसे. लिसन वेरी केयरफुली. x such that x belongs to natural number, या हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट. देखो ध्यान से. 3 times x such that x belongs to natural number and all natural numbers and x is less than 5. एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना है. यहाँ पे 3 का मतलब हो गया 3 into 1, 6 का मतलब हो गया 3 into 2, 9 का मतलब हो गया 3 into 3, 12 का मतलब हो गया 3 into 4. तो क्या अपने लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि ये एक सेट है? देखो अपने एकदम ध्यान से अपने आप को समझाओ. जस्ट एक्सप्लेन योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ. जस्ट देखो ध्यान से. इट इज अ सेट where elements is 3 times x. Can I say this way? 3 times x. Now what is this x? X is a natural number and all natural numbers less than 5. तो मुझे एक बात बताओ, अगर x एक नेचुरल नंबर है, पहला बात, अगर x एक नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and it goes up to infinity. But x का यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है. क्या? कि नहीं, सारा x नहीं, सारा नेचुरल नंबर नहीं, all natural numbers less than 5. मतलब अपने लोग यहाँ तक ही ले सकते. तो फिर इसके हिसाब से अगर हम x का वैल्यू 1 चूज करें तो सेट के अंदर एलिमेंट क्या आएगा? 3 1 जा 3. अगर हम 2 ले x का वैल्यू तो 3 2 जा 6, 3 ले तो 3 3 जा 9, और अगर हम 4 ले तो 3 4 जा 12 हो जाएगा. देखो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया या नहीं? एवरीवन नोट डाउन. ठीक है, ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ज्यादा मतलब वेल डिफाइंड जो कलेक्शन ऑफ हम लोग जो बोलते हैं ना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज कॉल्ड सेट. तो ये अपने लोग को क्लियरली जो है डेफिनेशन को मैच कर रहा है. समझ में आया या नहीं? बताओ एक बार सबको. ओके, नाउ इसी हिसाब से मैं चाहता हूं सब कोई को कि तुम लोग सब कोई सम नंबर एक बार 4 का 2 ट्राई करो. Sir, हाँ, आई एम जस्ट कमिंग. सो 4 का नंबर 2 एक बार ट्राई करो. जस्ट so once again everyone note down. I can represent this way: the form 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5. So here we are finding base is 2 and power is a natural number. So I've written 2 to the power n. N belongs to a natural numbers and all natural numbers less than or equal to 5. Next. Now everyone, I'm giving you time to try the rest questions, that is number 3, 4 and 5. तुम लोग ये सारा कंप्लीट करो अभी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये सब. ठीक है, अभी तुम लोग 4 का नंबर 3, 4 and 5 and try all 3. Try once. So
So I want your attention, everyone. See, let me write down all three questions first. So in the first question we have 5, 25, 125 and 625. So I don't need to explain you this one. It is same as number 2. Second one is 2, 4, 6 and so on. Third one is, the fourth one is 1, 4, 9, and so on till 100. So tell me, everyone. Yes. So first wala I have done 5 to the power n is equals to n belongs to natural number and n is equals to less N than, less than equal sorry, to 5. yeah, less than equal to Not 5, sorry, 4 4. 4 Right. ठीक है, because ये 5 to the power 1 है, 5 square है, 5 cube है, 5 to the power 4 है। ये क्या होगा बताओ तो? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 में हिंट भी दे दिया है। क्या होगा बताओ? Sir, x such that x is an even natural number. X is an even natural number. That is okay. That is perfect. Natural agree. X is an even natural number. अच्छा, next इसका क्या होगा? sir x such that n square मतलब डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, डायरेक्ट लिख सकते हैं n square, n belongs to natural number and all n less than equal to 10. है कि नहीं? क्योंकि पहला वाला क्या है, सब परफेक्ट स्क्वायर है, देखा जाए तो सब परफेक्ट स्क्वायर है। 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 10 का स्क्वायर 100 है। तो 2n स्क्वायर लिख दिया मैंने और यहाँ पे n क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो ये देखो, अगर देखा जाए तो ये 5 नंबर भी सेम वैसे ही है, तो तुम लोग 5 और 6 को ट्राई करना। Now let me start types of sets. Everyone write on the next topic, types of sets. And if you have any doubt, please, I mean, you can discuss, you can unmute yourself and discuss जो भी हमने लिखी है। Write down types of sets. Number 1. The topic is types of sets. Number 1, null set, also called void set. देखो नाम से पता चल रहा है null set और void set. What is the meaning of null set or void set? It is a set in which you will not find any elements present. मतलब void मतलब खाली, zero नहीं। मतलब void का मतलब ये मत सोचो कि उसके अंदर एक एलिमेंट होगा जो जीरो होगा, नहीं, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। void का मतलब क्या होता है, एकदम खाली। So what is the meaning of void set or null set? So void set is, or null set or empty set is a set जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स ना हो। और इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा बताओ तो? What is the cardinal number of any void set? Can you tell me? 0 0, because इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। और याद रखना, इसको सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, phi। इसको हम लोग सिंबॉलिकली इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसको phi रीड करते हैं। So phi मतलब खुद समझ जाना पड़ेगा तुमको सिंबल देख करके कि we are talking about a null set जिसके अंदर एक कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ नल सेट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट का नाम से पता चल रहा है कि एक सेट है जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे मान लो एक सेट है A, इसके अंदर मान लो एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट लिखा है, इन्फिनिटी तक नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, इसीलिए इसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं, बिकॉज इसका हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज इनफिनिट सेट? What is an infinite set? Infinite set is a set जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इंफिनिटी। मतलब ये क्या डिनोट करता है बताओ तो? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू इंफिनिटी। क्या हम लोग नेचुरल नंबर्स को काउंट कर सकते कभी भी कि कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं।
तो जहां पे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते सेट का उसको इनफिनाइट सेट बोलते हैं, और जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर पाते हैं हम लोग सेट का उसको क्या बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं. ओके नेक्स्ट फर्स्ट राइट डाउन दीस थिंग्स. हम थोड़ा भी स्लो जाएंगे एक दो क्लास देन वी विल ठीक है हम लोग अपने मोमेंटम को नाउ नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट. Now, what is equivalent set? Right now, two or more sets are said to be equivalent. Two or more sets are said to be equivalent if their cardinal number is same. Two or more sets are said to be equivalent if their cardinal number is same. ओके मतलब अगर दो या दो से ज्यादा सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम होगा मतलब उसको क्या कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं. मतलब इक्विवेलेंट सेट में हम लोग को ये नहीं देखना होता है कि उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, वो हमको देखने का जरूरत नहीं है. इक्विवेलेंट सेट में बस ये देखना है कि क्या दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या नहीं, बराबर है या नहीं. अगर बराबर है मतलब वो इक्विवेलेंट सेट है. समझ में आया तो बात. इक्विवेलेंट मतलब कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए. नेक्स्ट इक्वल सेट. राइट. नेक्स्ट नंबर 5 इक्वल सेट. Write down. Two or more sets are said to be equal. Two or more sets are said to be equal if number one they are equivalent. If number one they are equivalent, and number two their elements are equal. And number two, their elements are equal. Okay, and number two, their elements are equal. मतलब सबसे पहला चीज इक्विवेलेंट, इक्वल होने के लिए पहले सेट इक्विवेलेंट होना पड़ेगा. मान लो अगर एक सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट है मान लो 1, 2, 3, तो अपने लोग पहले इक्वल के लिए सोचेंगे क्यों? पहले एक बात बताओ, वो इक्विवेलेंट ही नहीं है, उसका कार्डिनल नंबर ही सेम नहीं है, तो फिर हम इक्वल के बारे में क्यों सोचेंगे? क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं है मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है जो मिसिंग है, किसी दो मतलब सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट है मिसिंग है. ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं है. एंड दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट अगर नहीं है तो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप पे जाना ही नहीं कि क्या वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं, क्या 1 इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, क्या 2 इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए जाना ही नहीं है. बिकॉज़ इफ दे आर नॉट इक्विवेलेंट तो इक्वल हो ही नहीं सकता. तो इक्वल होने के लिए पहले इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, उसके बाद दोनों के अंदर एलिमेंट जो है वो इक्वल होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं दैट द सेट्स आर इक्वल. ओके, now we have completed types of sets. Okay, you will find that in the next exercise, that is 1.2. In exercise 1.2 you will find that sums are based on the same concept only. Finite set क्या होता है, infinite set क्या होता है, equal set क्या होता है, इसी के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 1.2. हम लोग 2-4 सम्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले. ठीक है, मतलब ऐसे करके चैप्टर बहुत आसान है. ठीक है ना, हम लोग ऐसे इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज द चैप्टर इज क्वाइट सिंपल. ओके, जहां पे आएगा कि हम लोग डिटेल में यहाँ पे सम्स करना है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू, बट जो पोर्शन थोड़ा इजी है मैं 1-2 करके और तुम लोगों को पूरा दे दूंगा करने के लिए, बिकॉज इसमें है कुछ नहीं. पहला 2-3-4 एक्सरसाइज. I want everyone to pay attention and take out exercise 1.2. ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो है सम्स जो कंसेप्ट है, मतलब किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, टाइप्स ऑफ सेट्स. मतलब नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि कौन सा तुम्हारा नल सेट है. नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि फाइनाइट इनफिनाइट कौन कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफिनाइट सेट है. नंबर 2, 3 में. एंड नंबर 4, 5, 6 में पूछा जा रहा है कि इक्वल सेट क्या है. सो एक काम करते हैं हम लोग ये डिस्कस करते हैं. विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. सो एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 5. ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 5. मैं टाइम दे रहा हूं एक बार. 5 एक बार ट्राई करो, विल डिस्कस इन द क्लास. स्टार्ट. वी जस्ट राइट इट. So let me write down question number 5 here first. Okay, are the following pair of sets equal? Give reasons for this. So 5 का नंबर 1 में एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स 2 और 3 है. B is another set जिसके अंदर एलिमेंट जो x है वो क्या है,
x इज अ सॉल्यूशन, मतलब जो आंसर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या होगा, सॉल्व करके देखिए। रिलेटिव फैक्टराइज करके क्या आंसर आएगा बताना। So -3 or -2. इसका -2 और -3. -2 और -3, इट इज -2 और -3। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है? कहीं नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ 2 है या -2। सो यही चीज है, नंबर 5 का 2 में भी यही है। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3, आई मीन 1.3 सॉरी। तो 1.3 में क्या क्या कंसेप्ट्स है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट, ये तीन चीजें, ठीक है, ये तीन चीज को हम लोग कवर करते हैं। ओके, ध्यान दें। Everyone note down. Now we have to start what is subset and what is proper subset. So I want your attention, everyone. Now let us start. What is subset? सबसे पहला चीज सबसेट का ये सिंबॉलिक नोटेशन है, ठीक है, ये है सबसेट का सिंबॉलिक नोटेशन। तो सबसेट होता क्या है, लेट अस सी। Suppose we have a set A in which the elements present are 1, 2, 3. We have set B in which the elements present are again 1, 2, 3. And we have another set, let's say D, in which the elements present are 1, 2, 3, 4, 5, let's say. Now हम लोग कब ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ध्यान देना, ये सबसेट का सिंबल कब यूज करते हैं। देखो, जब भी किसी भी सेट का एलिमेंट्स को रिलेट करना है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ अ सेट को रिलेट करना है, तो हम लोग बिलोंग्स टू सिंबल यूज करते हैं। ओके, लेकिन अगर हमको दो सेट को कनेक्ट करना है, रिलेट करना है, तो फिर हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे, दैट इज सबसेट। कब यूज करेंगे, ध्यान देना। जैसे देखो ध्यान से, ये सारे केसेस में तीन सेट है। देखो, सेट ए का सारा एलिमेंट, जस्ट मैं बता रहा हूं, मुझे क्या सेट ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, यस और नो, टेल मी। Yes, sir. Yes, set A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है, yes it is true, so we can say that A is a subset of B। हम लोग ये सबसेट का सिंबल कब यूज करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट में, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो सेट है, लेफ्ट वाला जो सेट है, लेफ्ट का सारा एलिमेंट राइट में अगर प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो सेट है, इट इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड सेट। ओके, तो एक बात बताओ मुझे, क्या मैं ऐसा बोल सकते हो कि B इज अ सबसेट ऑफ A? टेल मी यस और नो। B इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब चेक करो, जब मैं बोल रहा हूं कि B इज अ सबसेट ऑफ A, तो तुमको चेक क्या करना है कि क्या B का सारा एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है या नहीं। तो देखो, तो B का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट है या नहीं, Yes, sir. है, तो हम लोग लिख सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A। अब बताओ मुझे, A इज अ सबसेट ऑफ D, ट्रू और फॉल्स? A का सारा एलिमेंट D में प्रेजेंट है या नहीं है, बताओ। Yes, sir. No, sir. A का सारा एलिमेंट D में प्रेजेंट है, यस, तो हम लोग लिख सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ D। अब बताओ तुम लोग, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं D इज अ सबसेट ऑफ A? बताओ। No, sir. नहीं, sir. क्योंकि क्या D का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट है, नहीं। चेक, और बात बताना, B इज अ सबसेट ऑफ D, ट्रू और फॉल्स? Yes. यस। अच्छा एक और बात बताना, A is a subset of A, true or false? Yes. True। True. देखो, तो ध्यान से भी नोट करना एक चीज, कि अगर मान लो हम लोग सबसेट का सिंबल यूज कर रहे हैं, तो लेफ्ट में जो सेट है, लेफ्ट का सेट का सारा एलिमेंट्स राइट सेट पे प्रेजेंट होना चाहिए। हमको राइट सेट पे दिमाग नहीं लगाना है। देखो, हम लोग को राइट वाले सेट पे दिमाग नहीं लगाना है, हमको देखना है कि लेफ्ट का जो सेट है, उसका सारे एलिमेंट्स क्या राइट वाले सेट पे प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है, सो हम लोग डेफिनेटली क्या लिख पाएंगे, हम लोग ये सिंबल को यूज कर पाएंगे। राइट सेट में ज्यादा है कि और ज्यादा है कि मतलब 2 एक्स्ट्रा 4 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा, हमको एक्स्ट्रा से क्या मतलब है, हमको इस चीज से मतलब है कि जो सबसेट के लेफ्ट में जो सेट है, उसका सारा एलिमेंट्स राइट वाले सेट पे प्रेजेंट है या नहीं। अगर है, then this is sufficient to, I mean, use this symbol called subset, this much, okay? So इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि A is a subset of B, A is a subset of D, B is a subset of D, I can use this symbols, okay? So एक बार कॉपी करें
and then we will see what is proper subset. I think the meaning of this simple subset is clear to everyone. Okay. Yes, sir. Now we will move on to the next topic, and that is proper subset. Now, what is proper subset? Listen. Just a minute. So, proper subset. Now, what is proper subset? Everyone know. ध्यान से नोट करना, ये है सिंपल प्रॉपर सबसेट। पहला, अब एक बात बताओ तुम मुझे, just tell me one thing. Just tell me one thing. ये सेट को नहीं, मतलब हम जो लिख रहे हैं उस पे ध्यान दो, सेट पे ध्यान मत देना। सपोज अगर मैं ये लिखूं कि n of a is not equal to n of b। अच्छा एक बात बताओ, तो ये लाइन से क्या समझ में आ रहा है? बताओ, तो ये लाइन से क्या समझ में आ रहा है? बताओ, एक्सप्लेन। कि उसका एलिमेंट्स मतलब वो कुछ ना कुछ एलिमेंट a और b में ऐसा है जो दोनों में प्रेजेंट नहीं है, राइट? तभी तो n of a not equal to n of b है, ठीक है? अगर n of a not equal to n of b है, मतलब क्या हुआ? मतलब a के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं और b के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो बराबर नहीं है, मतलब कुछ किसी में एक्स्ट्रा है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स का नहीं बात कर रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके साथ में अगर हम ये लिखते हैं, कि A is a subset of B। अब एक बात बताओ मुझे, A is a subset of B, तो मुझे बताओ तो किस सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है? बताओ। A is a subset of B, तो मुझे ये बताओ कि किस सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है? A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है या B का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट है? बताओ। A का एलिमेंट एक का B में A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है, इससे क्लियर होता है। और इससे क्या क्लियर होता है बताओ तो, कि किस सेट के अंदर ज्यादा। अच्छा देखो, एक और चीज, लेकिन इससे ये नहीं क्लियर होता है, इस लाइन से सिर्फ ये क्लियर नहीं होता है कि B के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स है। ये क्लियर होता है? नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना तुम लोग को कि A is a subset of B, मतलब क्या? A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट होना चाहिए, दैट्स ऑल। जैसे A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है, ये भी तो हुआ ना सबसेट। लेकिन अब देखो, इस दूसरे लाइन से क्या क्लियर होता है? पता है? कोई बता सकता है इस दूसरे लाइन से क्या क्लियर होता है? किस सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट है? बताओ तो। B के अंदर। अगर वे दोनों चीज साथ में लिखते हैं तो इससे क्या क्लियर होता है? बताओ तो। व्हाट डज इट इंप्लाइज? टेल मी। यस, आई डिड नॉट हियर, टेल मी वंस अगेन। तो कि A का सारा एलिमेंट्स B में है लेकिन वो इक्वल नहीं है और B में ज्यादा एलिमेंट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है। और ये लाइन में क्या पता चल रहा है कि n of A not equal to n of B, so which set has got more number of elements? Set B. Set B has got more number of elements, and in this case we can say that A is a proper subset of B. In this case we can say that A is a proper subset. Proper subset मतलब A का सारा एलिमेंट B में है और B में कुछ और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। समझ में आया मेरा बात? अब बताओ मुझे एक बात सबको, क्या मैं इस केस में, ये अगर A B C तीन सेट है, तो क्या मैं इस केस में लिख सकता हूँ A is a proper subset of B? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? नहीं सर। I cannot write. Can I write here? नहीं सर। no, sir. Can I write in this case? Yes, sir. Yes, because in this case I can write because A का सारा एलिमेंट D में प्रेजेंट है और D में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। इसका मतलब क्या होता है? A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है लेकिन B में एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ये दोनों केस जब भी हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? A is a proper, मतलब इस केस में प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है? नाउ मैं चाहता हूं आज, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें जो डेफिनेशन है छोटा छोटा बहुत ज्यादा है, तो मैं आज का क्लास में एक बार इतना तक रहने देता हूं और मैं 3 एक्सरसाइज होमवर्क दे रहा हूं। 3 एक्सरसाइज, ठीक है? एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3। और क्योंकि बहुत छोटा छोटा टॉपिक से अगर मैं और कुछ पढ़ा दूं ना तो दिमाग में नहीं जाएगा, सब लगेगा एक जैसा ही, सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अभी एक और टॉपिक बाकी है, पावर सेट, लेकिन मैं वो आज नहीं कराऊंगा। पहले इतनी चीजों को कवर करके बढ़िया से रिवाइज करके I'll share the video also, you can watch this video once again, और ये तीनों एक्सरसाइज का होमवर्क करके मुझे पहले व्हाट्सएप करो, फोटो लेके व्हाट्सएप टुडे ऑन। थैंक यू एवरीवन, दिस वाज फॉर टुडेस क्लास।